Hi everyone, I am Payal and I welcome everyone in today's PIB analysis. So basically आज की सेशन में भी हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे that is there in PIB. So आज के सेशन में we'll discuss 3 news that are there in the yesterday's PIB and of course few of the news we've taken from today's PIB session as well, today's PIB news as well. एंड we'll discuss it whatever has been today. वो completely जो है वो discuss नहीं करा जाता है, completely news जो है वो नहीं दी जाती है. So whatever is left we'll discuss it in the tomorrow's session. So without wasting time, let's see what is there in the news. This is our Telegram channel. This is the scanner of our Telegram channel. Of course you can scan it and join it. क्योंकि हम जो है यहाँ पे classes के regarding कुछ भी अगर कोई भी update आता है तो we keep on posting here. Plus extra चीज़ जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं दैट इज रिवीजन फॉर्मेट एज इन वी कीप ऑन पोस्टिंग MCQs. सो अगर आपने कुछ भी आज आपने कुछ भी अपने आप को एनालाइज करना है या फिर कुछ रिवीजन करनी है, फिर अगर आप बैठे फ्री टाइम है, अगर आपका कुछ ना कुछ ऐसे माइंड गेम खेलने का मन करे एज इन कि अगर कुछ भी फ्री टाइम है तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एज इन. क्योंकि हम क्या करते हैं कि MCQs वगैरह पोस्ट करते रहते हैं यहाँ पे, तो आप फ्री टाइम में जाके MCQs भी अगर सॉल्व करते रहेंगे तो वो आपके दिमाग को एक्टिव भी रखेगा एंड यू विल 24/7 be engaged in the content only which you are consuming for your examination. So we have first news that is innovate to educate. Now in this news we have basically a fun game. The government has launched a kind of fun game जिसमें क्या है कि जो स्कूल चिल्ड्रन है, फिर आई वुड से जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको और बूस्ट करने की बात यहाँ पे करी गई है थ्रू दिस कंपटीशन, थ्रू दिस चैनल. नाउ दे हैव सेड इट एज लर्निंग विद फन एंड इनोवेशन. नाउ द गवर्नमेंट इज हाईली फोकसिंग ऑन कि सिर्फ जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो बुक से उनको नॉलेज मिलती है, सिर्फ बच्चा उसी के ऊपर ध्यान ना दे, रादर देन प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया गया है कि मैथ्स के अंदर और जो बच्चे का ब्रेन है वो ज़्यादा शार्प हो इन सॉल्विंग पजल्स, इन सॉल्विंग सम्स, इन डीलिंग विद द मैथमेटिकल इक्वेशंस. सो इन ऑर्डर टू डील विद दो सिचुएशंस, और आई वुड से टू मेक द स्टडी मोर इंटरेस्टिंग, दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. और ये क्या करेगा, कंपटीशन भी होगा, एक फन गेम भी रहेगी, प्लस जो बच्चे का माइंड है उसको और ज़्यादा हम कैसे बेटर कर सकते हैं और ज़्यादा हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं. सो यू कैन सी हियर दैट अबाउट द चैलेंज. इफ आई टॉक अबाउट द competition here, then what is it? So basically it is a competition that is aiming towards the transformation of the child's brain according to the learnings and the experiences that particular person has. Now it is a part of your Create in India Challenge Session 1 Season 1 under the Waves World Audio Visual and your entertainment your summit. Now if I talk about that what it highly focuses on, so you can see here that it highly focuses on your AVGC XR, which involves different perspectives, which involves different of things. Now the first thing you see here is your animation, your visual effects, gaming, comics, AR, VR and your metaverse. Now why has government taken this step, particularly included these things, so that how changes can be made using these things only. So you can see gaming के ऊपर भी ज़्यादा focus करा गया है. Gaming के ऊपर ऐसा नहीं है कि government wants a children to be transform a child completely into gaming rather than involving that particular person in studies. This is not the case. Why it is added, why this challenge has been there, because government क्या चाहती है, या फिर I would say आज की generation को किस चीज़ की ज़रूरत है कि बैठ के सिर्फ books खोल के ही पढ़ना is not enough. माइंड जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है इन्वॉल्व कर पाएगा उस पर्टिकुलर कंटेंट में और उसका ब्रेन भी अकॉर्डिंगली इवॉल्व होगा. नाउ यू मस्ट हैव सीन हियर दैट आई टुक अ नेम ऑफ वेव्स हियर विच इज़ वर्ल्ड योर ऑडियो विजुअल एंड योर एंटरटेनमेंट समिट. हमने ये वेव्स के रिगार्डिंग एक पहले भी हमने न्यूज़ देखी थी कि एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल विद द हेल्प ऑफ दिस वेव्स क्या कर रहा है, जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल होते हैं उसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलती है. सो उसी रिगार्डिंग एक कॉल दिया गया था, एज इन के एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें अलग अलग रिसर्चर्स को, अलग अलग डेटा साइंटिस्ट को, डेटा एनालिस्ट को बुलाया गया था. वो चीज़ किसके लिए थी कि आप एक हमें ऐसा ऐप डेवलप करके दीजिए ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो कम हो जाए और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही लोगों तक पहुँचे. सो द सिचुएशन और आई वुड से द कंडीशन इज इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो चीज़ें हैं
हैं वो और विद द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर होती जा रही हैं, ठीक है. नाउ अबाउट द ऑर्गेनाइजर एंड द about the partners here, so you can see that Ministry of Information and Broadcasting is the organizer here. Indian Digital Gaming Society is a partner here. एंड इसके साथ साथ दो हमारे मतलब टोटल 3 पार्टनर्स हैं. ऑर्गेनाइजर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है, ब्रॉडकास्टिंग है, दिस इज द ऑर्गेनाइजर हियर. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द इनोवेटिव पार्टनर्स, इट इज हैक टू स्किल एंड स्किलिंग पार्टनर इज योर ICT टेक्नोलॉजी, आई वुड से ICT अकेडमी, ठीक है. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैथमेटिक्स में बच्चों को और इवॉल्व करना, उसका ब्रेन जो है और एक्टिव करना, ठीक है. बच्चा ऐसा ना हो कि सिर्फ हिस्टोरिकल सेंस या फिर आई वुड से हिस्ट्री ही बैठ के पढ़ रहा है, कोई और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है. सो बच्चे का माइंड खोलना, ठीक है, बच्चे का माइंड खोलना, उसको प्रैक्टिकल चीज़ें देके, उसको प्रैक्टिकल सम्स देके, प्रैक्टिकल सिचुएशन देके. तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में बच्चे का दिमाग खोलना. नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, जब बच्चा इन सब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेगा, जब बच्चा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा खुद को, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बच्चे की और ज़्यादा बढ़ेगी. सिमिलरली यू हैव दैट इट विल इनकरेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन children. It will enhance the cognitive skills with interactive content and affordable and accessible to the broad audience. So this is one of the features of this particular the initiative that has been taken. Major idea यही है कि जो स्कूल में एग्जाम देने हैं वो आप कहीं भी नहीं जा सकते उसके बाद. Of course when you clear your 10th, उसके बाद many of the students prepare for NEET, prepare for JEE. उसके अंदर भी आपका broad एक mindset चाहिए. Whatever you have studied in school will not be applied in those particular exams. जैसे किसी भी competitive exam के लिए, उसके लिए क्या चाहिए कि आपको आपका स्किल सेट होना चाहिए, आपका दिमाग जो है वो एक्टिवली वर्क करना चाहिए. तो उसी चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए बच्चा जो है उसको तैयार करा जा रहा है. अब की फोकस किसके ऊपर है कि एजुकेशनल कंटेंट हो, ठीक है, फन वे में हो, क्रिएटिव वे में हो, बट एजुकेशनल पर्पज से है. दिस इज एंटायरली फुलफिलिंग योर एजुकेशनल पर्पज. नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी, इंश्योरिंग दैट द डिवाइस इज कॉस्ट इफेक्टिव and accessible to the wide audience, मतलब जो coverage है that is broader in a manner. Similarly you can see the user friendly experience, ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि हर जो इंसान है फिर आई वुड से हर जो चिल्ड्रन है उसको आसानी से क्या कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इसमें, ठीक है. ड्यूरेबिलिटी है, इट विल क्रिएट अ रोबस्ट डिज़ाइन दैट कैन withstand everyday use by the children here. So you can see these are the key focus areas of this particular competition, ठीक है. क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया इवैल्यूएशन की बात करूँ कि जो जो कंपटीशन के बाद जो रैंक निकाला जाएगा बच्चों का या फिर जो रिजल्ट निकाला जाएगा उसके ऊपर क्या क्या इवैल्यूएशन जो है वो किन किन बेसिस के ऊपर करी जाएगी. सो फर्स्ट यू हैव इज इनोवेशन, कि बच्चे ने कितनी क्रिएटिविटी का यूज़ करा है, क्या क्या उसने इनोवेशन करी है अपने तरीके से, तो उसका माइंड रीड करा जाएगा बच्चे का, ठीक है. एजुकेशनल वैल्यू चेक करी जाएगी बच्चे की, यूज़र एक्सपीरियंस चेक करा जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर नहीं, या फिर ड्यूरेबिलिटी एंड डिज़ाइन जो है, इन सब फीचर्स के ऊपर जो हमारा क्राइटेरिया इवैल्यूएशन है जिसके ऊपर रिजल्ट निकलेगा, दीज विल बी taken into consideration. Next you have is India and Argentina ने क्या करा है, it has strengthened the cooperation in the lithium exploration and mining with the memorandum of understanding. Now एक अर्जेंटीना और इंडिया ने क्या करा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया है पर्टिकुलरली लिथियम सेक्टर को लेके, या फिर आई वुड से कि जो लिथियम की जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में और बढ़ाने के लिए. नाउ वी ऑल नो कि लिथियम में अगर मैं बात करूँ अर्जेंटीना की, सो इट इज़ एबंडेंट इन लिथियम, है ना, ये जो रिसोर्स है इसके पास ये बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लिथियम ट्रायंगल एज वेल. सो फोकस किसके ऊपर करा जा रहा है कि हम कोलैबोरेशन और ज़्यादा बढ़ाएं, इंडिया की जो कोलैबोरेशन है और ज़्यादा बड़े अर्जेंटीना के साथ, सो दैट जो रिसोर्सेज जिसमें हम लैक कर रहे हैं उसमें हमारा भी फायदा हो, प्लस जो बॉन्ड है बिटवीन अर्जेंटीना एंड योर इंडिया इट विल बी इम्प्रूव्ड एज वेल. नाउ सिमिलरली यू कैन सी कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर कोल एंड माइंस, उन्होंने along with the senior officials of the Ministry of Mines has held they have held discussions in the New Delhi. अब entire focus किसके ऊपर है, they are centered on mining the cooperation, lithium exploration and the investment opportunities, ठीक है. This is the entire discussion that have been done in the आर्ग्यूमेंट्स और आई वुड से एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. अब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है, इट इज साइंड बिटवीन द बॉडीज. दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सबसे पहले कौन सी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, विच इज योर MECL, PSU, a PSU under your ministry mines in India,
एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना। ये जो है इंपॉर्टेंट है जानना कि किन के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दैट हैज बीन साइंड, ठीक है। अब ये जो कोलैबोरेशन हुई है, फिर जो ये जो आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज करा गया है, बेसिक आइडिया इसका क्या है कि हम कोऑपरेशन को, हम अपने बॉन्ड्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। जो हमारा बायलेटरल अग्रीमेंट है या फिर जो भी हमारा जो एक्सचेंज हुआ है, जो भी हमारा अग्रीमेंट है, फिर आई वुड से डायलॉग्स एक्सचेंज हुए हैं, हमारी जो हेल्थ है या फिर आई वुड से जो हमारा बॉन्ड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे बात करी गई है विद द कोलैबोरेशन इन द लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड द रिसोर्स डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, अर्जेंटीना जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आई टोल्ड यू कि जो अर्जेंटीना है इट इज अबंडेंट इन व्हाट, इट इज इट हैज अबंडेंस ऑफ लिथियम, है ना। तो इसके पास जो है वो लिथियम की बहुत ज़्यादा भरमार है। सेकेंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लिथियम ट्रायंगल, दिस इज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट, अर्जेंटीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया के लिए, ठीक है। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ लिथियम की, सो इट इज़ अ क्रिटिकल मिनरल फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड वी ऑल नो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि एक्टिवली बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेकर आ रही है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है प्रोड्यूसर्स को, सो दैट पीपल कैन शिफ्ट टू ईवीज एंड आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीपल आर अडेप्टिंग इट, है ना। पीपल जो है, जो लोग हैं इस चीज़ को अडेप्ट भी कर रहे हैं और इस चीज़ से क्या कर रहे हैं, फ्रेंडली भी हो रहे हैं। सो पीपल आर अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी दैट गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन इंडिया। सो लिथियम जो है सबसे पहले तो ईवी बैटरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट चीज जो एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिथियम इज ऑल्सो अ रीन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में भी क्या करती है, हेल्प करती है। सो दिस इज द रीजन वाई अर्जेंटीना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर India. Now, what are the explorations and investment opportunities? So you can see ongoing lithium exploration efforts by Khanij Bidesh India Limited, which is Kabil, and Greenco in Catamarca. ठीक है, discussions on increasing the Indian company participation in the Argentina's mining projects, exploration of investment opportunities, long-term supply agreements and joint ventures. This is all I have already discussed with all of you. अब यहाँ पे policy और जो sustainable mining discussions हैं, ठीक है, that has been done between various I would say between the two parties. Knowledge exchange यहाँ पे हुई है, infrastructure support यहाँ पे मिलेगा, which will emphasize on the enhancement of engagement on becoming more friendly with each other. Similarly, अगर मैं impact देखूँ इस particular collaboration का, तो सबसे पहले तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एक रिसोर्स मिल रहा है इन विच वी आर लैकिंग और एक दूसरे देश से जिसके पास बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो इंडिया का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकेंडली, अर्जेंटीना की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमारी कोलैबोरेशंस बढ़ेंगी, ठीक है। अर्जेंटीना की अगर बात करूँ तो उसकी भी इंडिया के साथ क्या बढ़ेंगी, कोलैबोरेशंस इसमें बढ़ेंगे। इट विल स्ट्रेंथन द इंडिया एंड अर्जेंटीना टाइज, दैट इज वेरी श्योर। इट विल एक्सेलरेट द लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, and will it create the new opportunities for the Indian companies in the Argentina mining sector. So these are the impact of the collaboration that you can see here. Next news we have is that India and Nepal ने क्या करा है, एक पार्टनरशिप करी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और अगर मैं इंडिया एंड नेपाल की पार्टनरशिप की बात करूँ, सो यू कैन सी हियर व्हाट इज एग्जैक्टली द केस। सो बेसिकली a memorandum of understanding has been signed, in exchanging the technology, in exchanging the ideas, that are related to technology and science as well. If I talk about those industries, of course they have advanced technologies, they have abundance of resources in which we are lacking behind, and similarly we have few resources which they want to discuss with us, और जो कि उनको भी चीज़ें evolve करनी है. So you can see here that memorandum of understanding has been signed on this particular date at CSIR National Physical Laboratory in New Delhi. अब बैकग्राउंड और हिस्ट्री की बात करूँ अगर मैं कोऑपरेशन की, सो CSIR एंड जो हमारा NAST है, दैट इज ऑफ नेपाल एंड ऑफ इंडिया, हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन सिंस 1994. प्रीवियसली अग्रीमेंट्स कौन कौन से इंक्लूडेड थे, तो 1994 में यू कैन सी हियर कि फर्स्ट CSIR RONAST, नाउ विच इज नोन एज योर NAST ओनली, दिस वाज द अग्रीमेंट फॉर द जॉइंट रिसर्च. Similarly, if I talk about 1997 and 2002, so two working programs were signed leading to the joint workshops and their training programs. The new memorandum of understanding has been there for expanding the scientific partnership. ठीक है, so जो हमारे partnerships हैं जिनमें हम ideas वगैरह exchange करते हैं, laboratories में जो
एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी इवॉल्व रहती हैं। सो पहले हमने बात करी कि 2 अग्रीमेंट्स थे पहले, ठीक है। अब इसमें एक नई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुई है और अब से क्या होगी, यही जो है इनिशिएट करा जाएगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड की एरियाज ऑफ दिस कोलैबोरेशन, सो यू कैन सी कि सबसे पहले तो बायलैटरल कोऑपरेशन है, ठीक है। इंडिया नेपाल के बीच में जो टाइज है उनको और स्ट्रेंथन करना किसी भी मीन से, एज इन जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डायलॉग शेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें भी मिलेगी, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी या फिर जो हमारे पास आइडियाज होंगे, क्रिएटिविटी होगी, हम उनको भी देंगे, ठीक है। दिस इज द केस हियर। जॉइंट एक्टिविटीज होंगी, फॉर एग्जांपल योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दिस विल हाईली हेल्प इंडिया एज वेल एज नेपाल एज वेल. Similarly, you will have joint research projects and access to each other's research facilities. Technology और ज़्यादा integrate होगी, हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी advanced technology हो जिसको use करके हम भी कोई ना कोई नई जो है चीज़ें निकाल सकें. So these are the cases here. ठीक है. Similarly, if I talk about the key focus areas of the entire cooperation, so you have सबसे पहले तो biological sciences, next you have food science and technology. ये सारे key areas हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस memorandum of understanding के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च है, फिर जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है वो किए जाएंगे, ठीक है. सिमिलरली यू हैव वाटर एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, फ्यूल माइनिंग साइंसेज. सिमिलरली यू हैव मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज, योर ऑल्टरनेटिव एनर्जी, लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजीज, मेट्रोलॉजी एंड योर पॉलीमर साइंसेज एंड योर ड्रग डिस्कवरी एज वेल. सो these are the discussions, or I would say these are the areas which are focused on. की डिस्कशंस की अगर मैं बात करूँ तो वही सब चीज़ें आ जाएंगी. सबसे पहले तो हमारे इंडो जो नेपाल है उनके कोलैबोरेशंस को स्ट्रेंथन करेगा. साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो हम भी अडॉप्ट करेंगे, वो भी अडॉप्ट करेंगे. अगर कुछ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो वी विल गिव टू देम, एंड इफ दे हैव दे विल गिव टू अस. तो एक टाइज स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है. फिर उसके बाद इनोवेशन जो है वो इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, प्रोजेक्ट्स में एनहांसमेंट होगी, ठीक है. और इट विल लीड टू future growth as well. Similarly, significance की बात करूँ, so it will boost our scientific innovation, ठीक है, economic growth, technological progress, open the new avenues in the joint venture, or I would say joint research. It will mark the new era in the Indo-Nepal, and your cooperation as well. ठीक है. सो ये सारी जो सिग्निफिकेंस है, इज देयर एज एंड व्हेन जब हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वी हैव साइंड, इट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रिगार्डिंग योर साइंस इन टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो ये तीन न्यूज़ जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो इन जनरली टू नो. ठीक है. सो that is it in today's PIB session. I hope it was very understandable, or I would say you people have understood the concepts clearly. I hope everything is clear till now. Rest of the news which is which has been left in today's PIB we'll cover in the tomorrow's PIB. So all right, इस बार जो MCQ session है we'll conduct it in next week. ठीक है. उसको एकदम इस वीक का और नेक्स्ट वीक का हम साथ में कंडक्ट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द न्यूज़ हियर. आई होप everything is clear, and one thing that I want to say that keep revising. यहाँ के बाद आप खुद PIB जाके खोलिए और उसको खुद पढ़िए ताकि आपको चीज़ों की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो. So thank you so much. I will meet you in the next session.